आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईसीटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स इंटरनेट और इस इंटरनेट की यूजेस के बारे में और इसका इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम जानेंगे। Internal links are computer networks all over the world so that users can share resources and communication with each other. The internet is an inherently participative medium. Anybody can publish information or create new service. That's why it is a fantastic resource for finding and sharing information. The web contains literally billions of web pages containing information about every topic imaginable. However, we need to take care when using the internet to look फॉर इंफॉर्मेशन और टू सेंड इंफॉर्मेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड की जितने सारे कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर की जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क इंटरनेट से ही लिंक होता है। इससे कोई भी कोई किसी के डेटा शेयर कर सकता है, कोई इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरनेट एक पार्टिसिपेटिव मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू कोई डेटा को पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। The internet and web are not regulated. There is no organization that controls who can create a web page or what those pages can contain. So, how do you which web page to believe, which information to trust? Stick to website that belongs to trusted organization. If the website address ends in .gov.uk, it is more likely to be reliable and one that ends in .com. Look at the spelling and grammar used. Who is the author or sponsor of the page? Are there obvious reason for bias? Is contact information provided? Is there a copyright symbol on the page? If so, who holds the copyright? Is this page a Zumbai or one considered Walking Dead because the person who posted it no longer maintains or update it? What is the purpose of the page? Why is this information being posted as information, as a public service, as a news source, as a research tool for academic, as a personal X to grind, or as a way to gain attention? How well organized is the page? Is the page easy to navigate? It is complete? When was the page last updated? Is the information on it current? How credible are the links it provides? Can you verify the information on the web page some other way? Even though a page might not meet your standard as a कीटेबल सोर्स, इट मे हेल्प योर जनरेट गुड आइडिया। जो भी हम इंटरनेट के थ्रू वेब पेज से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन कितना रिलायबिलिटी है वो पहले हमें देखना है। और रिलायबिलिटी देखने के लिए हमें जो ट्रस्ट जो एड्रेस है वो हमें देखना है। जैसे .gov.uk इज़ द मोर लाइकली टू बी रिलायबल। जो जहाँ पे .com है जिस पेज में, उससे ज़्यादा रिलायबल होता है। हमें स्पेलिंग और ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जिसके स्पेलिंग और ग्रामर सही है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। जिसका ऑथर कौन है, किस पर्पस में इस वेब पेज बना है, उसका बारे में हमें जानना है। इसका कॉपीराइट कुछ है कि नहीं, इसके बारे में हमें जानना है। जिस वेब पेज रिलायबल है हम उसी वेब पेज को हम यूज़ करेंगे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। What the means all my facts are wrong. I copied everything straight off the internet. Undesirable information. In addition to the web being full of websites with inaccurate information, there are also a huge number of websites that contains highly offensive or illegal materials. Avoiding this type of materials can be tricky. Many organizations and also many parents make use of web page filtering software. This software attempts to prevent offensive and illegal material being accessed. Even if filtering software is not installed on a computer, you can still take steps to help.
You avoid this type of sites. Use the safe search features on search engine such as Google. Don't click the link that are shown in junk email. That's called spam. Think carefully about the keywords that you use to search with. हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट में बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जिसमें इलीगल मटेरियल्स है, और इस इलीगल मटेरियल को रिमूव करने के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन वेब पेज फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का काम है जो भी ऑफेंसिव और इलीगल मटेरियल्स है उसको एक्सेस करना। जो अगर कोई फ़िल्टरिंग इस तरह का सॉफ्टवेयर अगर कोई इंस्टॉल नहीं है अगर कोई कंप्यूटर में, तो तब हमें कोई साइट्स में जाना है जिस सेफ सर्च, जैसे गूगल की तरह सेफ सर्च इंजन में उसमें हमें जाना है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और हमें जो ईमेल है, ईमेल की जो जंक ईमेल है जिसको हम स्पैम कहते हैं, इसमें कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, तभी हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इंटरनेट की थ्रू से। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी, जो इंटरनेट की यूज करने से कैसे हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, उस डाटा ट्रांसफ़र में कैसे सिक्योरिटी होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एज हैज़ बीन डिस्कस ऑलरेडी, यू शुड ऑलवेज कंसिडर encrypting and sensitive or personal data that is sent or accessed over a public network such as the internet. Many websites, especially online shopping or online banking site, require you to enter personal information such as credit card number, social security IDs, etc. to make sure your data is safe. These websites use encryption. They are called secure website. You should always make sure that a website is secure before giving personal information. The website URL should begin with https dot डबल स्लैश डॉट ऐसे करके। नॉर्मल unsecure sites have address that start with http double dots double slash dot dot. Your web browser should show a close padlock icon. जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसका सिक्योरिटी होना चाहिए। हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग साइट, जो भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी आईडीज़ जो हम यूज करते हैं, उसके लिए जो वेबसाइट होता है वो एकदम सिक्योर होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो डेटा इंटरनेट के थ्रू वायरल हो सकता है। इसलिए एकदम सिक्योर वेबसाइट होना चाहिए। जो भी हम वेबसाइट शॉपिंग और बैंकिंग के लिए यूज करते हैं को पहले देखना है वो सिक्योर है कि नहीं। अगर सिक्योर वेबसाइट है तो उसके देखो पहले HTTPS ऐसे करके स्टार्ट होता है, उसके बाद डबल डॉट डबल स्लैश होकर वेबसाइट स्टार्ट होता है। और जो वेबसाइट सही नहीं है इन जनरल, उसका स्टार्ट ऐसा होता है HTTP डॉट डबल स्लैश। इसमें जो सही है उसके साथ एस रहता है और इसमें एस नहीं रहता है। Phishing is the nickname given to the sending of fraudulent emails that attempt to trick people into revealing details about their bank accounts or other online accounts, example Amazon, eBay, etc. The fishers then use these bank details to log in to the victim's bank account and take their money. The email looks very convincing. It even has the bank's logo and it sounds urgent and scary. If you were to click the link, you would be taken to a fake bank website. Then, if you were to enter your login details, these would be recorded by the फीचर्स एंड यूज टू एम्प्टी योर रियल बैंक अकाउंट। फेजिंग होता है किसी को फ्रॉडलैंड ईमेल सेंड करके उसके सारे बैंक डिटेल्स, जो भी उसका ऑनलाइन अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा है, उस डेटा को फीजर सारे बैंक डिटेल्स लेकर अपने जो अकाउंट है, वो जो विक्टिम के अकाउंट से जितना भी अकाउंट है उस सारे अकाउंट मानी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे सकते हैं। तो फेजिंग में कोई फ्रॉड ईमेल से अपना खुद
पर्सनल बैंकिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कोई दूसरे किसी के पास जाकर वो दूसरे पर्सन जो फीजर कहते हैं उसको वो सारे बैंक डिटेल्स लेकर लॉगिन करके जिसका ओरिजिनल बैंक अकाउंट है उससे हैक करके सारे अकाउंट ले सकते हैं, उसी को हम फेजिंग कहते हैं। Farming is similar to phishing, but instead of deceiving you, a farming attack deceives your computer. In a farming attack, when you in a completely genuine URL, your computer is tricked into displaying a fake website. Then, when you try to log into the fake website, your username, password are recorded and used to take money from your real bank account. It is very difficult to spot farming attack because to the user everything seems to be normal. फार्मिंग फेजिंग की तरह एकदम सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जब कंप्यूटर में कोई किसी के सर्च करने के लिए साचे हम कोई बैंकिंग अकाउंट के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जब हम कोई यूआरएल टाइप करता है उस यूआरएल टाइप की एकदम सेम सिमिलरी दूसरी कोई यूआरएल वेबसाइट भी हमें दिखाई जेन्युइन यूआरएल की तरह अगर कोई गलती से भी वो जो सिमिलर टाइप दूसरे यूआरएल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कंप्यूटर में, अगर उसमें हमारा जो बैंकिंग डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स अगर हम दे दें तो इससे क्या होगा, सारे डिटेल्स जो फ्रॉड है उसके पास चल जाएगा, हमारे सारे बैंक्स डिटेल्स इस फेक वेबसाइट से सारे जानकारी उसके पास चल जाएगा, तो उससे मेरा जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो सकता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्टी है टू स्पॉट फार्मिंग अटैक, बिकॉज ये जो जेन्युइन यूआरएल और जो फेक यूआरएल एकदम सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। ईमेल स्पैम स्पैम इज़ द name given to unsolicited emails once start without being asked for. It is a huge problem. It is estimated that 97% of all emails messages sent is a spam. The most commonly seen spam include the following: phishing scams, a very popular and dangerous form of email fraud; Horizon bank scam or advance free fraud scam; pyramid scam including multi-level marketing; other get rich quick or make money fast scheme; quack health product and remedies; ads for pornographic website; offers of software for collecting email addressing and sending UC; offers of bulk emailing services for sending UGC; chain letters illegally pirated software; spam emails usually contains adverts for product. If it was not for email spam filters which separate out spam message from genuine message, our email system would be unusable. अगर हम हमारा ईमेल में इनबॉक्स में देखें तो इनबॉक्स में बहुत सारा ऐसा ईमेल है जिस ईमेल को में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, गेट रिच क्विक, मेक मनी फास्ट, इस तरह का मेल है। हमारा जो भी ईमेल का इनबॉक्स है उसमें दिखा जाए सबके पास इस तरह का मैसेज आता ही है। हेल्थ प्रोडक्ट्स रिलेटेड, प्रोग्रामेटिक वेबसाइट, इस तरह का बहुत सारे इस तरह का इनबॉक्स में ईमेल आता है, जिस ईमेल में हम हमारा कोई परमिशन नहीं लेकर वो सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट रिलेटेड ईमेल सेंड करता है, इसी को हम स्पैम कहते हैं। ईमेल में इस तरह का 97% इस तरह का स्पैम रहता है जो बिना परमिशन लेकर हमारा वो मैसेज सेंड करता है ईमेल के थ्रू। अगर ईमेल स्पैम फिल्टर नहीं है तो बाद में वो जो हमारा ईमेल है वो यूजलेस हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ आज के डेट में टेररिस्ट और थीव्स ने नए नए तरीके से अटैक कर रहे हैं भाया इंटरनेट के थ्रू से। इस तरह का फेजिंग, फार्मिंग, ईमेल स्पैम, ये सब यूज करके हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है, सारे पर्सनल डिटेल्स वो ले लेते हैं, सारे हमारे जो बैंक अकाउंट है और जो भी ऑनलाइन जो साइट है उस ऑनलाइन साइट से हमारा पर्सनल डिटेल्स हैक कर सकता है।
तो इसलिए हमें और भी सतर्क कर रहना है। जो भी हम इंटरनेट के थ्रू जो इस तरह का वेबसाइट हम यूज करते हैं परचेस के लिए, जो ऑनलाइन साइट यूज करता है, तो उसमें हमें जो सिक्योर साइट है उसी को हम यूज करना चाहिए।